بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان رسولوں میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ ان میں سے بعض ایسے ہیں جن سے اللہ ہم کلام ہوا، اور اس نے ان میں سے بعض کے درجات بلند کیے، اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو روشن نشانیاں عطا کی، اور ہم نے روح القدس سے ان کی تائید کی، اور اگر اللہ چاہتا تو ان رسولوں کے آنے اور روشن نشانیاں دیکھ لینے کے بعد یہ لوگ آپس میں نہ لڑتے، مگر انہوں نے اختلاف کیا، پس ان میں سے بعض تو ایمان لے آئے اور بعض نے کفر اختیار کیا، اور اگر اللہ چاہتا تو یہ لوگ باہم نہ لڑتے، مگر اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اے ایمان والو، جو مال ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو قبل اس دن کے جس میں نہ تجارت کام آئے گی اور نہ دوستی کا فائدہ ہوگا اور نہ سفارش چلے گی، اور ظالم وہی لوگ ہیں جنہوں نے کفر اختیار کیا۔ اللہ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ اور سب کا نگہبان ہے، اسے اونگ آتی ہے اور نہ نیند۔ زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے سب اسی کی ملکیت ہے۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے حضور سفارش کر سکے؟ جو کچھ لوگوں کے روبرو اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے وہ ان سب سے واقف ہے، اور وہ علم خدا میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جس قدر وہ خود چاہے۔ اس کی کرسی آسمانوں اور زمین پر چھائی ہوئی ہے، اور ان دونوں کی نگہداری اس کے لیے کوئی کار گراں نہیں ہے، اور وہ بلند و بالا اور عظیم ذات ہے۔ دین میں کوئی جبر و اکراه نہیں، بتحقیق ہدایت اور ضلالت میں فرق نمایاں ہو چکا ہے۔ پس جو طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لے آئے، بتحقیق اس نے نہ ٹوٹنے والا مضبوط سہارا تھام لیا، اور اللہ سب کچھ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اللہ ایمان والوں کا کارساز ہے، وہ انہیں تاریکی سے روشنی کی طرف نکال لاتا ہے، اور کفر اختیار کرنے والوں کے سرپرست طاغوت ہیں جو انہیں روشنی سے تاریکی کی طرف لے جاتے ہیں۔ یہی جہنم والے ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کا حال نہیں دیکھا جس نے ابراہیم سے ان کے رب کے بارے میں اس بنا پر جھگڑا کیا کہ اللہ نے اسے اقتدار دے رکھا تھا؟ جب ابراہیم نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، تو اس نے کہا زندگی اور موت دینا میرے اختیار میں بھی ہے۔ ابراہیم نے کہا اللہ تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو اسے مغرب سے نکال کر دکھا۔ یہ سن کر وہ کافر مبہوت رہ گیا، اور اللہ ظالموں کی رہنمائی نہیں کرتا۔ یا اس شخص کی طرح جس کا ایک ایسی بستی سے گزر ہوا جو اپنی چھتوں کے بل گری ہوئی تھی، تو اس نے کہا اللہ اس اجڑی ہوئی آبادی کو مرنے کے بعد کس طرح دوبارہ زندگی بخشے گا؟ بس اللہ نے 100 برس تک اسے مردہ رکھا، پھر اسے دوبارہ زندگی دی۔ اس سے پوچھا بتاؤ کتنی مدت مردہ رہے ہو؟ اس نے کہا 1 دن یا اس سے کم۔ اللہ نے فرمایا نہیں، بلکہ 100 برس مردہ پڑے رہے ہو، لہذا ذرا اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو جو سڑی نہیں، اور اپنے گدھے کو بھی دیکھو، اور ہم نے یہ اس لیے کیا ہے تاکہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے نشانی بنائیں، اور پھر ان ہڈیوں کو دیکھو کہ ہم انہیں کس طرح اٹھاتے ہیں، پھر ان پر گوشت چڑھا دیتے ہیں۔ یوں جب اس پر حقیقت عیاں ہو گئی تو اس نے کہا
میں جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اور وہ واقعہ یاد کرو جب ابراہیم نے کہا تھا، میرے پروردگار مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ فرمایا، کیا آپ ایمان نہیں رکھتے؟ کہا، ایمان تو رکھتا ہوں، لیکن چاہتا ہوں کہ میرے دل کو اطمینان مل جائے۔ فرمایا، پس 4 پرندوں کو پکڑ لو، پھر ان کے ٹکڑے کرو، پھر ان کا ایک ایک حصہ ہر پہاڑ پر رکھ دو، پھر انہیں بلاؤ، وہ تیزی سے آپ کے پاس چلے آئیں گے، اور جان رکھو اللہ بڑا غالب آنے والا، حکمت والا ہے۔ جو لوگ اپنا مال راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں، ان کے مال کی مثال اس دانے کی سی ہے جس کی 7 بالیاں اگ آئیں، جن میں سے ہر بالی کے اندر 100 دانے ہوں، اور اللہ جس کے عمل کو چاہتا ہے دگنا کر دیتا ہے۔ اللہ بڑا کشائش والا دانا ہے۔ جو لوگ اپنا مال راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں اور خرچ کرنے کے بعد نہ احسان جتاتے ہیں نہ ایذا دیتے ہیں، ان کا صلہ ان کے پروردگار کے پاس ہے، اور انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ محزون ہوں گے۔ نرم کلامی اور درگزر کرنا اس خیرات سے بہتر ہے جس کے بعد خیرات لینے والے کو ایذا دی جائے، اور اللہ بڑا بے نیاز، بڑا پربار ہے۔ اے ایمان والو، اپنی خیرات کو احسان جتا کر اور ایذا دے کر اس شخص کی طرح برباد نہ کرو جو اپنا مال صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے، اور وہ اللہ اور روز آخرت پر ایمان نہیں رکھتا۔ بس اس کے خرچ کی مثال اس چٹان کی سی ہے جس پر تھوڑی سی مٹی ہو، پھر اس پر زور کا مہ برسے اور اسے صاف کر ڈالے۔ اس طرح یہ لوگ اپنے اعمال سے کچھ بھی اجر حاصل نہ کر سکیں گے، اور اللہ کافروں کی رہنمائی نہیں کرتا۔ اور جو لوگ اپنا مال اللہ کی خوشنودی کی خاطر اور ثبات نفس سے خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال اس باغ کی سی ہے جو اونچی جگہ پر واقع ہو، جس پر زور کا مہ برسے تو دگنا پھل دے، اور اگر تیز بارش نہ ہو تو ہلکی پھوار بھی کافی ہو جائے، اور اللہ تمہارے اعمال کو خوب دیکھنے والا ہے۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے لیے کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو جس کے نیچے نہریں جاری ہوں، اور اس کے لیے اس میں ہر قسم کے میوے موجود ہوں، اور جب بڑھاپا آ جائے اور اس کے بچے بھی ناتواں ہوں تو ناگہاں یہ باغ ایک ایسے بگولے کی زد میں آ جائے جس میں آگ ہو اور وہ جل جائے۔ اللہ یوں تمہارے لیے نشانیاں کھول کر بیان کرتا ہے، شاید تم غور و فکر کرو۔ اے ایمان والو، جو مال تم کماتے ہو اور جو کچھ ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے، اس میں سے عمدہ حصہ راہ خدا میں خرچ کرو، اور اس میں سے ردی چیز دینے کا قصد ہی نہ کرو، اور اگر کوئی وہی تمہیں دے تو تم خود اسے لینا گوارا نہ کرو گے، مگر یہ کہ چشم پوشی کر جاؤ، اور جان رکھو کہ اللہ بڑا بے نیاز اور لائق ستائش ہے۔ شیطان تمہیں تنگ دستی کا خوف دلاتا ہے اور بے حیائی کی ترغیب دیتا ہے، جبکہ اللہ تم سے اپنی بخشش اور فضل کا وعدہ کرتا ہے، اور اللہ بڑا صاحب وسعت دانا ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے حکمت عطا فرماتا ہے، اور جسے حکمت دی جائے گویا اسے خیر کثیر دیا گیا ہے، اور صاحبان عقل ہی نصیحت قبول کرتے ہیں۔ اور تم جو کچھ خرچ کرتے ہو یا نظر مانتے ہو، اللہ کو اس کا علم ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اگر تم علانیہ خیرات دو تو وہ بھی خوب ہے،
اور اگر پوشیدہ طور پر اہل حاجت کو دو تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے، اور یہ تمہارے کچھ گناہوں کا کفارہ ہوگا، اور اللہ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمے نہیں ہے کہ انہیں جبرن ہدایت دے، بلکہ خدا ہی جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور تم جو بھی مال خرچ کرو گے اس کا فائدہ تم ہی کو ہے، اور تم صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے خرچ کرو گے، اور جو مال تم خرچ کرو گے تمہیں اس کا پورا اجر دیا جائے گا، اور تمہارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ ان فقراء کے لیے خرچ کرو جو راہ خدا میں اس طرح گھر گئے ہیں کہ وہ معیشت کے لیے زمین میں دوڑ دھوپ نہیں کر سکتے۔ ناواقف لوگ ان کی حیا و عفت کی بنا پر انہیں مالدار خیال کرتے ہیں، حالانکہ ان کے قیافے سے تم ان کی حاجت مندی کو پہچان سکتے ہو۔ وہ تکرار کے ساتھ نہیں مانگتے، اور جو مال تم خرچ کرتے ہو اللہ اس سے خوب واقف ہے۔ جو لوگ اپنا مال شب و روز پوشیدہ اور علانیہ طور پر خرچ کرتے ہیں ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور انہیں نہ کوئی خوف لاحق ہوگا اور نہ وہ محزون ہوں گے۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ بس اس شخص کی طرح اٹھیں گے جسے شیطان نے چھو کر حواس باختہ کیا ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں تجارت بھی تو سود ہی کی طرح ہے، حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ بس جس شخص تک اس کے پروردگار کی طرف سے نصیحت پہنچی اور وہ سود لینے سے باز آ گیا تو جو پہلے لے چکا وہ اسی کا ہوگا، اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اور جس نے اعادہ کیا تو ایسے لوگ جہنمی ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ سود کو ناپائیدار اور خیرات کو بابرکت بنا دیتا ہے، اور اللہ کسی ناشکر گناہگار کو پسند نہیں کرتا۔ البتہ جو لوگ ایمان لے آئیں اور نیک عمل بجا لائیں، نیز نماز قائم کریں اور زکات دیں، ان کا اجر ان کے پروردگار کے پاس ہے، اور ان کے لیے نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ رنجیدہ ہوں گے۔ اے ایمان والو، اللہ کا خوف کرو، اور جو سود لوگوں کے ذمہ باقی ہے اسے چھوڑ دو اگر تم مومن ہو۔ لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، اور اگر تم نے توبہ کر لی تو تم اپنے اصل سرمایہ کے حقدار ہو، نہ تم ظلم کرو گے نہ تم پر ظلم کیا جائے گا، اور تمہارا قرضدار اگر تنگ دست ہو تو کشائش تک مہلت دو، اور اگر سمجھو تو معاف کر دینا ہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور اس دن کا خوف کرو جب تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر وہاں ہر شخص کو اس کے کیے کا پورا بدلہ مل جائے گا، اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ اے ایمان والو، جب کسی معینہ مدت کے لیے قرض کا معاملہ کرو تو اسے لکھ دیا کرو، اور لکھنے والے کو چاہیے کہ تمہارے درمیان انصاف کے ساتھ تحریر کرے، اور جسے اللہ نے لکھنا سکھایا اسے لکھنے سے انکار نہیں کرنا چاہیے۔ بس وہ دستاویز لکھے اور املا وہ شخص کرائے جس کے ذمہ قرض ہے، اور اسے اپنے رب یعنی اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور اس میں کسی قسم کی کمی نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن اگر قرضدار کم عقل یا ضعیف یا مضمون لکھوانے سے عاجز ہو تو اس کا ولی انصاف کے ساتھ املا کرائے۔ پھر تم لوگ اپنے میں سے 2 مردوں کو گواہ بنا لو۔ اگر 2 مرد نہ ہو تو 1 مرد اور 2 عورتوں کو گواہ بناؤ جن گواہوں کو تم پسند کرو، تاکہ اگر ان میں سے ایک
भूल जाए तो दूसरी उसे याद दिलाए, और जब गवाही के लिए गवाह तलब किए जाएं तो उन्हें इनकार नहीं करना चाहिए, और कर्ज छोटा हो या बड़ा मुद्दत के तयन के साथ उसे लिखने में तसाहुल ना बरतो। ये बात अल्लाह के नजदीक करीने इंसाफ है और गवाही के लिए ज्यादा मुस्तहकम है, और इससे तुम इस बात के ज्यादा नजदीक हो जाते हो कि शक व शुबा ना करो, मगर यह कि तुम आपस में जो दस्त बदस्त तिजारती मामलात करते हो उनके ना लिखने में कोई मुजायका नहीं है। अलबत्ता जब खरीदो फरोख्त किया करो तो गवाह बना लिया करो, और कातिब और गवाह को नुकसान ना दिया जाए, और ऐसा करना तुम्हारी नाफरमानी है। और अल्लाह से डरो, और अल्लाह तुम्हें तालीमात से आरास्ता फरमाता है, और अल्लाह तो हर चीज का खूब इल्म रखने वाला है। और अगर तुम हालत सफर में हो और कोई लिखने वाला मैसर ना आए तो कब्जे के साथ रहन पर मामला करो। अगर तुम एक दूसरे पर एतबार करो तो जिस पर एतबार किया जाए उसे चाहिए कि दूसरे की अमानत अदा करे, और अपने रब यानी अल्लाह से डरो और शहादत ना छुपाओ। और जो शहादत छुपाता है उसका दिल गुनाहगार होता है, और अल्लाह तुम्हारे आमाल से खूब आगाह है। जो कुछ आसमानों और जमीन में है सब अल्लाह का है, और तुम अपने दिल की बातें जाहिर करो या छुपाओ, अल्लाह तुमसे हिसाब लेगा। फिर वो जिसे चाहे माफ करे और जिसे चाहे अजाब दे, और अल्लाह हर चीज पर कादिर है। रसूल उस किताब पर ईमान रखता है जो उस पर उसके रब की तरफ से नाजिल हुई है, और सब मोमिनीन भी, सब अल्लाह और उसके फरिश्तों, उसकी किताबों और उसके रसूलों पर ईमान रखते हैं, और वो कहते हैं हम रसूलों में तफरीक के कायल नहीं हैं, और कहते हैं हमने हुक्म सुना और इताअत कबूल की। पालने वाले हम तेरी बख्शिश के तालिब हैं और हमें तेरी ही तरफ पलटना है। अल्लाह किसी शख्स पर उसकी ताकत से ज्यादा जिम्मेदारी नहीं डालता। हर शख्स जो नेक अमल करता है उसका फायदा उसी को है, और जो बदी करता है उसका अंजाम भी उसी को भुगतना है। परवरदिगारा, हमसे भूल चूक हो गई हो तो उसका मुआखिजा ना फरमा। परवरदिगारा, हम पर वो बोझ ना डाल जो तूने हमसे पहलों पर डाल दिया था। परवरदिगारा, हम जिस बोझ के उठाने की ताकत नहीं रखते वो हमारे सर पर ना रख। परवरदिगारा, हमारे गुनाहों से दरगुजर फरमा और हमें बख्श दे और हम पर रहम फरमा। तू हमारा मालिक है, काफिरों के मुकाबले में हमारी नुसरत फरमा। अलिफ लाम मीम। अल्लाह वो जात है जिसके सिवा कोई लायक इबादत नहीं, जो जिंदा और कायनात का जबरदस्त निगहदार है। उसने हक पर मबनी एक किताब ए रसूल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की, जो साबका किताबों की तस्दीक करने वाली है, और उसने तौरात और इंजील को नाजिल किया। इससे पहले इंसानों की हिदायत के लिए और फुरकान, हक को बातिल में इम्तियाज करने वाला कानून नाजिल फरमाया। जिन्होंने अल्लाह की आयात का इनकार किया उनके लिए सख्त अजाब है। अल्लाह बड़ा गालिब आने वाला, खूब बदला लेने वाला है। जमीन और आसमान की कोई चीज अल्लाह से यकीनन पोशीदा नहीं है। वही तो है जो माओ के रहमों में जैसी चाहता है तुम्हारी तस्वीर बनाता है। उस गालिब आने वाले हिकमत के मालिक के सिवा कोई माबूद नहीं। वही जात है जिसने आप
सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम पर वो किताब नाजिल फरमाई जिसकी बास आयात मुहकम वाज़ेह हैं, वही असल किताब है, और कुछ मुतशाबिह हैं जिनके दिलों में कजी है। वो फितना और तावील की तलाश में मुतशाबिहात के पीछे पड़े रहते हैं, जबकि उसकी हकीकी तावील तो सिर्फ खुदा और इल्म में रासिख मकाम रखने वाले ही जानते हैं, जो कहते हैं हम इस पर ईमान ले आए हैं, ये सब कुछ हमारे रब की तरफ से है, और नसीहत तो सिर्फ अक्लमंद ही कबूल करते हैं। हमारे परवरदिगार, जब तूने हमें हिदायत बख्शी है तो इसके बाद हमारे दिलों को कजी में मुब्तला ना कर, और हमें अपने पास से रहमत इनायत फरमा। हमारे परवरदिगार, बिला शुबा तू उस रोज सब लोगों को जमा करने वाला है जिसके आने में कोई शुबा नहीं। बेशक अल्लाह वादा खिलाफी नहीं करता। जो लोग काफिर हो गए हैं, उनके अम्वालो औलाद उन्हें अल्लाह से हरगिज कुछ भी बेनियाज नहीं बनाएंगे, और ये लोग दोज़ख के ईंधन होंगे। उनका हाल भी फिर औनियों और उनसे पहले लोगों का सा होगा जिन्होंने हमारी आयात को झुटलाया। बस अल्लाह ने उन्हें उनके गुनाहों की वजह से गिरफ्त में ले लिया, और अल्लाह सख्त अजाब देने वाला है। ए रसूल, जिन्होंने इनकार किया है उनसे कह दीजिए, तुम अनकरीब मगलूब हो जाओगे और जहन्नुम की तरफ इकट्ठे किए जाओगे, और वो बदतरीन ठिकाना है। तुम्हारे लिए उन दो ग्रोह में जो जंगे बद्र के दिन बाहम मुकाबिल हुए एक निशानी थी। एक ग्रोह अल्लाह की राह में लड़ रहा था और दूसरा काफिर था। वो कुफ्फार उन मुसलमानों को अपनी आंखों से अपने से दुगना मुशाहिदा कर रहे थे, और खुदा जिसे चाहता है अपनी नुसरत से उसकी ताईद करता है। साहिबान बसीरत के लिए इस वाक़े में यकीनन बड़ी इबरत है। लोगों के लिए ख्वाहिशात नफ्स की रग़बत, मसलन औरतें, बेटे, सोने और चांदी के ढेर लगे खजाने, उम्दा घोड़े, मवेशी और खेती ज़ेब व ज़ीनत बना दी गई है। ये सब दुनियावी जिंदगी के सामान हैं, और अच्छा अंजाम तो अल्लाह ही के पास है। कह दीजिए, क्या मैं तुम्हें इससे बेहतर चीज बताऊं? जो लोग तकवा इख्तियार करते हैं उनके लिए उनके रब के पास बागात हैं जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, उनमें वो हमेशा रहेंगे। नीज उनके लिए पाकीज़ा बीवियां और अल्लाह की खुशनूदी होगी, और अल्लाह बंदों पर खूब निगाह रखने वाला है। ये वो लोग हैं जो कहते हैं, हमारे रब, बिलाशुबा हम ईमान लाए, बस हमारे गुनाह बख्श दे और हमें आतिश जहन्नुम से बचा। ये लोग सब्र करने वाले, रास्तबाज, मशगूल इबादत रहने वाले, खर्च करने वाले और सहर के औकात में तलबे मग़फ़िरत करने वाले हैं। अल्लाह ने खुद शहादत दी है कि उसके सिवा कोई माबूद नहीं, और फरिश्तों और अहले इल्म ने भी यही शहादत दी। वो अदल कायम करने वाला है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। वो बड़ा गालिब आने वाला, हिकमत वाला है। अल्लाह के नजदीक दीन सिर्फ इस्लाम है, और जिन्हें किताब दी गई उन्होंने इल्म हासिल हो जाने के बाद आपस की ज्यादती की वजह से इख्तिलाफ किया, और जो अल्लाह की निशानियों का इनकार करता है तो बेशक अल्लाह उससे जल्द हिसाब लेने वाला है। ए रसूल, अगर ये लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से झगड़ा करें तो इनसे कह दीजिए, मैंने
اور میری اتباع کرنے والوں نے تو اللہ کے آگے سر تسلیم خم کیا ہے۔ اور پھر اہل کتاب اور ناخواندہ لوگوں سے پوچھئے، کیا تم نے بھی تسلیم کیا ہے؟ اگر یہ لوگ تسلیم کر لیں تو ہدایت یافتہ ہو جائیں، اور اگر منہ موڑ لیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری تو صرف پیغام پہنچا دینا ہے، اور اللہ اپنے بندوں پر خوب نظر رکھنے والا ہے۔ جو لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے ہیں، اور لوگوں میں سے انصاف کا حکم دینے والوں کو بھی قتل کرتے ہیں، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیں۔ ایسے لوگوں کے اعمال دنیا و آخرت میں برباد ہو گئے اور ان کا کوئی مددگار نہیں۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں دیکھا کہ جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا ہے انہیں کتاب خدا کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے، تو ان میں سے ایک فریق کج ادائی کرتے ہوئے منہ پھیر لیتا ہے۔ ان کا یہ رویہ اس لیے ہے کہ وہ کہتے ہیں جہنم کی آگ ہمیں چند روز کے سوا چھو نہیں سکتی، اور جو کچھ یہ بہتان تراشی کرتے رہے ہیں اس نے انہیں اپنے دین کے بارے میں دھوکے میں رکھا ہے۔ بس اس دن ان کا کیا حال ہوگا جب ہم ان سب کو جمع کریں گے جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں، اور ہر شخص اپنے اعمال کا پورا بدلہ پائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ کہہ دیجئے، اے اللہ، اے مملکت ہستی کے مالک، تو جسے چاہے حکومت دیتا ہے اور جس سے چاہے حکومت چھین لیتا ہے، اور تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہے ذلیل کر دیتا ہے۔ بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو رات کو دن اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور تو ہی جاندار سے بے جان اور بے جان سے جاندار پیدا کرتا ہے، اور تو جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ مومنوں کو چاہیے کہ وہ اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو سرپرست نہ بنائے، اور جو کوئی ایسا کرے اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں۔ ہاں، اگر تم ان کے ظلم سے بچنے کے لیے کوئی طرز عمل اختیار کرو تو اس میں مذائقہ نہیں، اور اللہ تمہیں اپنے غضب سے ڈراتا ہے، اور باز گشت اللہ ہی کی طرف ہے۔ کہہ دیجئے، جو بات تمہارے سینوں میں ہے اسے خواہ تم پوشیدہ رکھو یا ظاہر کرو، اللہ بہرحال اسے جانتا ہے۔ نیز آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ بھی اس کے علم میں ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس دن ہر شخص اپنا نیک عمل حاضر پائے گا، اسی طرح ہر برا عمل بھی۔ اس روز انسان یہ تمنا کرے گا کہ کاش یہ دن اس سے بہت دور ہوتا، اور اللہ تمہیں اپنے غضب سے ڈراتا ہے، اور اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ کہہ دیجئے، اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہاری خطاؤں سے درگزر فرمائے گا، اور اللہ نہایت بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ کہہ دیجئے، اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، پس اگر وہ لوگ روگردانی کریں تو اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ بے شک اللہ نے آدم، نوح، آل ابراہیم اور آل عمران کو تمام عالمین پر برگزیدہ فرمایا ہے، وہ اولاد جو ایک دوسرے کی نسل سے ہے، اور اللہ خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ وہ وقت یاد کرو
जब इमरान की औरत ने कहा, परवरदिगारा, जो बच्चा मेरे शिकम में है उसे तेरी नजर करती हूं, वो और बातों से आजाद होगा, तू मेरी तरफ से कबूल फरमा, बेशक तू बड़ा सुनने वाला जानने वाला है। फिर जब उसे जन चुकी तो कहने लगी, मालिक, मैंने लड़की जनी और अल्लाह बेहतर जानता है कि इस मादर मरियम ने क्या जना, और लड़का इस लड़की जैसा नहीं हो सकता था, और मैंने इस लड़की का नाम मरियम रखा, और मैं इसे और इसकी औलाद को शैतान मरदूस से तेरी पनाह में देती हूं। चुनाचे उसके रब ने उसकी नजर लड़की को बवजह एहसन कबूल फरमाया और उसकी बेहतरीन नशोनुमा का एहतमाम किया और जकरिया को उसका सरपरस्त बना दिया। जब जकरिया उसके हुजरे इबादत में जाते तो उसके पास ताम मौजूद पाते। पूछा, ए मरियम, ये खाना तुम्हारे पास कहां से आता है? वो कहती है, अल्लाह के यहां से। बेशक खुदा जिसे चाहता है बेहिसाब रिज़्क़ देता है। इस मकाम पर जकरिया ने अपने रब को पुकारा, कहा, परवरदिगारा, मुझे अपनी इनायत से साले औलाद अता कर, यकीनन तू ही दुआ सुनने वाला है। चुनाचे जब वो हुजरे इबादत में खड़े नमाज पढ़ रहे थे तो फरिश्तों ने आवाज दी, अल्लाह तुझे याया की बशारत देता है। जो कलेमा अल्लाह की तरफ से है वो उसकी तस्दीक करने वाला, सयादत का मालिक, ख्वाहिशात पर जब्त रखने वाला, नबूवत के मकाम पर फाइज और सालेहीन में से होगा। जकरिया बोले, परवरदिगारा, मेरे यहां लड़का कहां से पैदा होगा जबकि मैं तो सिन रसीदा हो चुका हूं और मेरी औरत बांझ है। अल्लाह ने फरमाया, ऐसा ही होगा, अल्लाह जो चाहता है करता है। अर्ज किया, पालने वाले, मेरे लिए कोई निशानी मुकर्रर फरमा। अल्लाह ने फरमाया, तुम्हारी निशानी यह होगी कि तुम 3 दिन तक लोगों से इशारे के अलावा बात ना करोगे और अपने रब को खूब याद करो और सुबह शाम उसकी तस्बीह करते रहो। और वो वक्त याद करो जब फरिश्तों ने कहा, ए मरियम, बेशक अल्लाह ने तुम्हें बरगुजीदा किया है और तुम्हें पाकीज़ा बनाया है और तुम्हें दुनिया की तमाम औरतों पर बरगुजीदा किया है। ए मरियम, अपने रब की इताअत करो और सजदा करती रहो और रुकू करने वालों के साथ रुकू करती रहो। ये गैब की खबरें हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के जरिए बता रहे हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उनके पास मौजूद न थे जब वो अपने कलम फेंक रहे थे कि उनमें से कौन मरियम की सरपरस्ती करे, और न ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास उस वक्त मौजूद थे जब वो झगड़ रहे थे। जब फरिश्तों ने कहा, ए मरियम, अल्लाह तुझे अपनी तरफ से एक कलेमे की बशारत देता है जिसका नाम मसीह ईसा बिन मरियम होगा। वो दुनिया और आखिरत में आबरूमंद होगा और मुकर्रब लोगों में से होगा और वो लोगों से गहवारे में और बड़ी उम्र में गुफ्तगू करेगा और सालेहीन में से होगा। मरियम ने कहा, परवरदिगारा, मेरे यहां लड़का किस तरह होगा? मुझे तो किसी शख्स ने छुआ तक नहीं। फरमाया, ऐसा ही होगा, अल्लाह जो चाहता है खल्क फरमाता है। जब वो किसी अम्र का इरादा कर लेता है तो उससे कहता है, हो जा, तो वो हो जाता है। और अल्लाह उसे किताब व हिकमत और तौरात व इंजील की तालीम देगा और वो बनी इस्राइल की तरफ भेजे गए रसूल की हैसियत से कहेगा,
मैं तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से निशानी लेकर तुम्हारे पास आया हूं, वो ये कि मैं तुम्हारे सामने मिट्टी से परिंदे की शक्ल का मुजस्सिमा बनाता हूं और उसमें फूंक मारता हूं तो वो खुदा के हुक्म से परिंदा बन जाता है, और मैं अल्लाह के हुक्म से मादरजात अंधे और बर्स के मरीज को तंदुरुस्त और मुर्दे को जिंदा करता हूं, और मैं तुम लोगों को बताता हूं कि तुम क्या खाते हो और अपने घरों में क्या जमा करके रखते हो। अगर तुम साहिबाने ईमान हो तो इसमें तुम्हारे लिए निशानी है, और अपने से पेशतर आने वाली तौरेत की तस्दीक करता हूं, और जो चीजें तुम पर हराम कर दी गई थीं उनमें से बास को तुम्हारे लिए हलाल करने आया हूं, और मैं तुम्हारे रब की तरफ से निशानी लेकर तुम्हारे पास आया हूं, लिहाजा अल्लाह से डरो और मेरी इताअत करो। बेशक अल्लाह मेरा रब है और तुम्हारा भी रब है, लिहाजा तुम उसकी बंदगी करो, यही सीधा रास्ता है। जब ईसा ने महसूस किया कि वो लोग कुफ्र इख्तियार कर रहे हैं तो बोले, अल्लाह की राह में कौन मेरा मददगार होगा? हवारियों ने कहा, हम अल्लाह के मददगार हैं, हम अल्लाह पर ईमान लाए हैं और आप गवाह रहें कि हम फरमाबरदार हैं। हमारे परवरदिगार, जो तूने नाजिल फरमाया उस पर हम ईमान लाए और हमने रसूल की पैरवी कबूल की, बस हमारा नाम भी गवाहों के साथ लिख दे। उन लोगों ने ईसा के कत्ल की तदाबीर सोची और अल्लाह ने भी जवाबी तदबीर फरमाई, और अल्लाह बेहतरीन तदबीर करने वाला है। जब अल्लाह ने फरमाया, ए ईसा, अब मैं तुम्हारी मुद्दत पूरी कर रहा हूं और तुम्हें अपनी तरफ उठाने वाला हूं और तुम्हें काफिरों की नापाक साजिशों से पाक करने वाला हूं, और जो लोग तुम्हारी पैरवी करेंगे उन्हें कयामत तक कुफ्र इख्तियार करने वालों पर बाला दस्त रखूंगा। फिर तुम लोगों को मेरी तरफ लौट कर आना है, फिर उस वक्त मैं तुम्हारे दरमियान उन बातों का फैसला करूंगा जिनमें तुम इख्तिलाफ करते रहे हो। बस जिन्होंने कुफ्र इख्तियार किया उनको दुनिया और आखिरत में सख्त अजाब दूंगा और उनका कोई फरियाद रस ना होगा। और जो लोग ईमान लाए और नेक अमाल बजा लाए, अल्लाह उन्हें उनका पूरा सिला देगा, और अल्लाह जालिमों से हरगिज़ मोहब्बत नहीं करता। ये अल्लाह की निशानियां और हिकमत भरी नसीहतें हैं जो हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़कर सुना रहे हैं। बेशक अल्लाह के नजदीक ईसा की मिसाल आदम की सी है कि उसने पहले उसे मिट्टी से खल्क किया, फिर उसे हुक्म दिया, हो जा, और वो हो गया। हक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब की तरफ से है, बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शक करने वालों में से ना हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इल्म आ जाने के बाद भी अगर ये लोग ईसा के बारे में आपसे झगड़ा करें तो आप कह दें, आओ हम अपने बेटों को बुलाते हैं और तुम अपने बेटों को बुलाओ, हम अपनी बेटियों को बुलाते हैं और तुम अपनी बेटियों को बुलाओ, हम अपने नफ्सों को बुलाते हैं और तुम अपने नफ्सों को बुलाओ। फिर दोनों फरीक अल्लाह से दुआ करें कि जो झूठा हो उस पर अल्लाह की लानत हो। यकीनन ये बरहक वाकयात हैं और अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और बेशक अल्लाह ही की जात गालिब आने वाली बाहिकमत है। अगर ये लोग कबूल हक से फिर जाएं तो अल्लाह मुफ्सिदों को यकीनन खूब जानता है। कह दीजिए, ए अहले किताब, उस कलमे की तरफ आ जाओ
जो हमारे और तुम्हारे दरमियान मुश्तरक है वो ये कि हम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करें और उसके साथ किसी भी चीज को शरीक ना बनाए और अल्लाह के सिवा आपस में एक दूसरे को अपना रब ना बनाए। बस अगर ना माने तो उनसे कह दीजिए, गवाह रहो, हम तो मुस्लिम हैं। ए अहले किताब, तुम इब्राहिम के बारे में क्यों निज़ा करते हो? हालांकि तौरेत और इंजील तो इब्राहिम के बाद नाजिल हुई है। क्या तुम अक्ल नहीं रखते? जिन बातों में तुम्हें कुछ इल्म था उनमें तो तुमने झगड़ा कर ही लिया। अब तुम ऐसी बातों में क्यों झगड़ते हो जिनका तुम्हें कुछ भी इल्म नहीं? और ये सारी बातें अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। इब्राहिम ना यहूदी थे ना ईसाई, बल्कि वो यकसूई के साथ मुस्लिम थे और वो मुशरिकीन में से हरगिज न थे। इब्राहिम से निस्बत रखने का सबसे ज्यादा हक उन लोगों को पहुंचता है जिन्होंने उनकी पैरवी की, और अब ये नबी और ईमान लाने वाले ज्यादा हक रखते हैं। और अल्लाह ईमान रखने वालों का हामी और कारसाज है। अहले किताब का एक ग्रोह चाहता है कि तुम्हें गुमराह कर दे। दरअसल वो अपने आप को गुमराह कर रहे हैं, मगर वो शऊर नहीं रखते। ए अहले किताब, तुम अल्लाह की आयात का क्यों इनकार करते हो, हालांकि तुम खुद उनका मुशाहिदा कर रहे हो? ए अहले किताब, तुम जानबूझकर हक को बातिल के साथ क्यों खल्त करते हो और हक को छुपाते हो? और अहले किताब का एक ग्रोह आपस में कहता है, ईमान लाने वालों पर जो किताब नाजिल हुई है उस पर सुबह ईमान लाओ और शाम को इनकार कर दो, शायद वो मुसलमान बरगश्ता हो जाए। और ये लोग आपस में कहते हैं, अपने दीन के पैरोकारों के सिवा किसी की बात ना मानो। कह दीजिए, हिदायत तो बेशक वो है जो अल्लाह की तरफ से हो। लेकिन अहले किताब बाहम ये कहते हैं, कहीं ऐसा ना हो जैसी चीज तुम्हें मिली है वैसी किसी और को मिल जाए, या वो तुम्हारे रब के हुजूर तुम्हारे खिलाफ हुज्जत कायम कर लें। उनसे कह दीजिए, फजल तो बेशक अल्लाह ही के हाथ में है, वो जिसे चाहे अता फरमाए, और अल्लाह बड़ी वुसअत वाला, जानने वाला है। वो जिसे चाहता है अपनी रहमत से मुख्तस करता है, और अल्लाह अजीम फजल वाला है। और अहले किताब में कोई ऐसा भी है कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे ढेर दौलत का अमीन बना दें तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लौटा देगा। अलबत्ता उनमें कोई ऐसा भी है जिसे अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिनार का भी अमीन बना दें तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अदा नहीं करेगा जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके सर पर खड़े ना रहें। इसकी वजह यह है कि वो कहते हैं, ना ख्वांदा गैर यहूदी लोगों के बारे में हम पर कोई जिम्मेदारी नहीं है, और वो जानबूझकर अल्लाह पर झूठ बांधते हैं। हां, हुक्म खुदा तो यह है कि जो भी अपना अहद पूरा करे और तकवा इख्तियार करे तो अल्लाह तकवा वालों को यकीनन दोस्त रखता है। बेशक जो लोग अल्लाह के अहद और अपनी कसमों को थोड़ी कीमत पर बेच डालते हैं, उनके लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है, और अल्लाह कयामत के दिन उनसे ना तो कलाम करेगा और ना उनकी तरफ निगाह करेगा और ना उन्हें पाक करेगा, बल्कि उनके लिए दर्दनाक अजाब है। और अहले किताब में यकीनन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो किताब पढ़ते हुए अपनी जबान को इस तरह फेरते हैं कि तुम्हें यह ख्याल गुजरे कि यह खुद किताब की इबारत है,
हालांकि वो किताब से मुताल्लिक नहीं, और वो कहते हैं ये अल्लाह की जानिब से है, हालांकि ये अल्लाह की जानिब से नहीं होती, और वो जानबूझकर अल्लाह की तरफ झूठी निस्बत देते हैं। किसी इंसान को ये हक नहीं पहुंचता कि अल्लाह तो उसे किताब, हिकमत और नबूवत अता फरमाए, फिर वो लोगों से कहे अल्लाह के बजाय मेरे बंदे बन जाओ, बल्कि वो तो ये कहेगा जो तुम अल्लाह की किताब की तालीम देते हो और जो कुछ पढ़ते हो उसका तकाजा यह है कि तुम सच्चे रब्बानी बन जाओ, और वो तुम्हें फरिश्तों और पैगंबरों को रब बनाने का हुक्म नहीं देगा। क्या एक नबी तुम्हें मुसलमान हो जाने के बाद कुफ्र इख्तियार करने का हुक्म दे सकता है? और जब अल्लाह ने पैगंबरों से अहद लिया कि जब मैं तुम्हें किताब और हिकमत अता कर दूं, फिर आइंदा कोई रसूल तुम्हारे पास आए और जो कुछ तुम्हारे पास है उसकी तस्दीक करे, तो तुम्हें उस पर जरूर ईमान लाना होगा और जरूर उसकी मदद करना होगी। फिर अल्लाह ने पूछा क्या तुम इसका इकरार करते हो और मेरी तरफ से अहद की भारी जिम्मेदारी लेते हो? उन्होंने कहा हां, हमने इकरार किया। अल्लाह ने फरमाया बस तुम गवाह रहो और मैं भी तुम्हारे साथ गवाह हूं। बस इसके बाद जो अपने अहद से फिर जाएं, वही लोग फासिक हैं। क्या ये लोग अल्लाह के दीन के सिवा किसी और दीन के ख्वाह हैं? हालांकि आसमानों और जमीन की मौजूदात में चारों नाचार अल्लाह के आगे सरे तस्लीम खम किए हैं और सबको उसी की तरफ पलटना है। कह दीजिए हम अल्लाह पर ईमान लाए हैं और जो हमारी तरफ नाजिल हुआ है उस पर भी, नीस उन बातों पर भी जो इब्राहीम, इस्माइल, इसहाक, याकूब और उनकी औलाद पर नाजिल हुई हैं, और जो तालीमात मूसा और ईसा और बाकी नबियों को अपने रब की तरफ से मिली हैं, उन पर ईमान लाए हैं। हम उनके दरमियान किसी तफरीक के कायल नहीं हैं और हम तो अल्लाह के ताबे फरमान हैं। और जो शख्स इस्लाम के सिवा किसी और दीन का ख्वाह होगा वो उससे हरगिज़ कबूल नहीं किया जाएगा, और ऐसा शख्स आखिरत में खसारा उठाने वालों में से होगा। अल्लाह क्यों कर उस कौम को हिदायत करे जो ईमान लाने के बाद काफिर हो गई है, हालांकि वो गवाही दे चुके थे ये रसूल बरहक है, और साथ ही उसके पास रोशन दलाइल भी आ गए थे। और ऐसे जुल्म के मुर्तकिब होने वालों को अल्लाह हिदायत नहीं करता। उन लोगों की सजा ये है कि उन पर अल्लाह, फरिश्तों और इंसानों सब की लानत है। वो हमेशा उस लानत में गिरफ्तार रहेंगे, ना उनके अजाब में तखफीफ होगी और ना ही उन्हें मोहलत दी जाएगी, सिवाय उन लोगों के जिन्होंने उसके बाद तौबा की और इस्लाह कर ली। बस अल्लाह बड़ा बख्शने वाला, रहम करने वाला है। जिन्होंने ईमान लाने के बाद कुफ्र इख्तियार किया फिर वो अपने कुफ्र में बढ़ते चले गए, उनकी तौबा हरगिज़ कबूल ना होगी, और यही लोग गुमराह हैं। जिन्होंने कुफ्र इख्तियार किया और कुफ्र की हालत में मर गए, उनमें से किसी से इस कदर सोना भी जिससे रूए जमीन भर जाए हरगिज़ कबूल नहीं किया जाएगा, अगरचे वो उसे फिदिये में दे दें। ऐसे लोगों के लिए दर्दनाक अजाब होगा और उनकी मदद करने वाले ना होंगे।